Now start with the chapter number 2, that is basic accounting terms. First basic accounting term is there, that is the business transaction. The term business transaction here means the financial transactions entered into between two parties, or we can say it as that when there is a deal between two parties, that is to be known as business transaction. But this business transaction is based on exchange of goods and services इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन. इट मीन्स कि जब भी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे या फिर गुड्स को परचेज़ करेंगे, आप इन रिटर्न आप या तो मनी रिसीव करेंगे या फिर मनी पे करेंगे. फॉर एग्जांपल, सेल और परचेज ऑफ फिक्स असेट्स. लेटर वी विल डिस्कस कि व्हाट डू मीन बाय फिक्स असेट, व्हाट डू मीन बाय गुड्स. सेल और परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ एनी income may be in term of rent, income may be in term of salary, income in term of like interest, income in term of commission. Payment of expenses, same over here कि like in terms of interest, expenses in terms of interest, in terms of commission, in terms of rent, in terms of salary, in terms of wages. So many payment of expenses are there. So it means कि when we are making a payment or when we are receiving any income, there is a deal between two parties. Clear beta? So that is to be known as business transaction. Now the business transaction is over here 4 types. That first one is the cash transaction. As the name it is, cash transaction. It means कि when we are dealing with the another party or when there is a deal between two parties, we are receiving the cash or we are paying the cash. Now the another one is there, that is the credit transaction. Credit transaction here means कि when we are selling the goods or when we are purchasing the goods, ऑन द स्पॉट वी आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट. मीन्स हम जब भी कोई गुड्स या तो ख़रीद रहे हैं या फिक्स असेट ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में ना हम कोई भी कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हम किसी फिक्स असेट को सेल कर रहे हैं और वी आर सेलिंग एनी गुड्स, उस टाइम में भी हम लोग कोई भी कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ टू बी नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नाउ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बिजनेस बिजनेस. सो इट मीन्स जब फर्म के बाहर कोई ट्रांजेक्शन होती है, मीन्स विद द क्रेडिटर्स, with the bankers, with the financial institutions, any type of transaction took place outside the business, that is to be known as external transaction. Now internal transaction, as internal it means within the business. तो जब भी हम business के अंदर कोई transaction करेंगे, that is to be known as internal transaction. Like whatever the profit I earned, आई एम कीपिंग सम अमाउंट एज अ रिज़र्व. मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से जितना भी प्रॉफिट था उसमें से कुछ पार्ट एज ए रिज़र्व रख रही हूँ फॉर अ फ्यूचर. दैट इज़ टू बी नोन एज इंटरनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो मेरी ही डीलिंग है, बिजनेस की डीलिंग है, वो किसी आउटसाइड पार्टी मीन्स टू पार्टीज़ के बीच में डीलिंग नहीं है. सो दैट्स वाई दैट इज़ टू बी नोन एज इंटरनल ट्रांजेक्शन. गॉट इट? सो दिस इज़ द बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हेन द डील बिटवीन टू पार्टीज़ आर देयर, but that deal is depend upon the monetary condition. These are the example: cash, on the spot we are receiving the cash; credit transaction, we are not receiving or paying the cash on the spot; external transaction, outside the business; and internal transaction within the business, transaction that take place within the business. Now the main point, what do you mean by asset? Listen it carefully. An economic resource that can be converted into cash. एक आपका पॉइंट ये है कि ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि क्या होता है, कन्वर्ट होता है किस में, कैश में, या फिर ऐसा रिसोर्स जो कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे. दैट इज़ टू बी नोन एज असेट. किस तरीके से, देखिए, इकोनॉमिक रिसोर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश.
मीन्स लाइक क्या हुआ, आपने एक लैंड ख़रीदा, आपने कोई मतलब आपने कोई लैंड ख़रीदा, या फिर आपने क्या किया, आपने कोई फ़र्नीचर ख़रीदा। आपको लगता है कि आज मुझे अब ये 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ठीक है, तो मैं इसे चेंज कर लूँ, तो आप क्या करेंगे, आप इसे सेल कर देंगे। इट मीन्स ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, ठीक है। इट मीन्स लाइक लैंड फर्नीचर और प्लांट मशीनरी, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, लाइक आप कहीं क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी सिक्योरिटीज़ में, किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश। जब भी वो हमें क्या करेगा, हमें लगेगा इसमें बेनिफिट हो रहा है, हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। और गिव्स अस अ फ्यूचर बेनिफिट। अब गिव्स अस अ फ्यूचर बेनिफिट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। किस तरीके से, लाइक क्या हुआ, मैंने किसी चीज़ की एडवांस पेमेंट कर दी। किस तरीके से, देखिए बेटा, लाइक क्या हुआ, आई हैव टू पे ₹12,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ माई बिजनेस। क्लियर। अब वो मैं क्वार्टरली बेसिस पे करती थी, इट मीन्स मैं मंथली पे कर रही हूँ, मीन्स क्वार्टरली मैं 3,000 पे कर रही हूँ। मैंने क्या किया, आई पेड 15,000 रुपीज़ इन लम सम टू द इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी। इट मीन्स दैट शोज़ कि मैंने 3,000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट किया है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, आप बताइए कितना पे करना पड़ेगा, आई हैव टू पे ओनली 9,000। इट मीन्स अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे, ठीक है, मीन्स कन्वर्ट नहीं होगी कैश में, वो कैश में कन्वर्ट नहीं है, बट सिर्फ मुझे क्या दे रही है, फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, देन दैट इज़ टू बी नोन एज असेट। क्लियर बेटा। लाइक क्या हुआ, मैंने अपने घर में कुछ फर्नीचर बनवाया। अब मैंने फ़र्नीचर वाले से जब बात की तो उससे बोला कि मैं ओवरऑल, उसने बोला मैम मैं आपसे 50,000 रुपीज़ लूँगा, आपके घर में सारा फर्नीचर सेट करूँगा, बट ही नीड्स इन एडवांस सम मनी। उसने मुझे बोला मैम मुझे ये रॉ मटेरियल लाना है या कुछ भी लेके आना है, उसने मुझसे एडवांस लिया 20,000। सो दैट शोज़ कि मेरे को सिर्फ इन फ्यूचर कितना पे करना पड़ेगा अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद, उसके वर्क कंप्लीट के बाद 30,000। दैट इज़ दी फ्यूचर बेनिफिट। सो an economic resource that converted into cash by selling the fixed asset or by selling the securities or gives us a future benefit is to be known as assets. Now there are two types of assets, current assets and non-current assets. देखिए बेटा, current assets are those assets which can be converted into cash within 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे वो ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपको नहीं गिवन हो कि आपका क्या ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है कि कैश जो है फिर से कन्वर्ट होने के बाद फिर से कैश में आ जाए। लाइक कैसे, देखिए मैंने कैश है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया किस में, रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल फिर प्रोड्यूस हुआ फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को मैंने क्या किया, सेल किया, डेटर्स उधार बेच दिया, उधार सेल किया, फिर उसके बाद डेटर्स ने मुझे क्या किया, लाइक चेक दे दिया, चेक मीन्स, ठीक है, और वो चेक मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया और फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। सो दिस इज़ टू बी नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू अ कैश। मैं बैंक से विड्रॉ कर लूँगी, वो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, कैश में कहाँ जाए। सो कैश का रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना, फिनिश गुड्स को मैंने सेल करा, डेटर्स को क्रेडिट पे, डेटर ने मुझे चेक दिया, हो सकता है डेटर चेक ना दे, डायरेक्ट मैं कैश ही पेमेंट कर दे। सो दिस इज़ टू बी नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग साइकिल गिवन ना हो, देन यू हैव टू अज्यूम द ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स टाइम पीरियड, ठीक है बेटा, 12 मंथ्स टाइम पीरियड का ऑपरेटिंग साइकिल अज्यूम करना है। सो करंट असेट्स आर दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल कैश तो ऑलरेडी कैश है, दैट्स वाई वी कैन से इट एज कैश और
कैश इक्विवेलेंट, हम इसे कैश इक्विवेलेंट भी कहेंगे, कैश और बैंक को, क्योंकि एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ कैश। कैश तो मेरी पॉकेट में ही है, बैंक एनी टाइम आई कैन विड्रॉ द सेम फ्रॉम अ बैंक। डेटर्स, डेटर्स स्टॉक, डेटर्स आर द पर्सन टू whom वी आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, मीन्स हमारे कस्टमर जिनको हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया है। स्टॉक, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड goods at the end of the accounting period. Prepaid expenses already I have discussed, gives us a future benefit, means मैं क्या कर रही हूँ, एडवांस में पेमेंट कर रही हूँ। BR, देखिए बेटा, the difference, there is no difference between debtor and BR, only a little bit difference. Debtor is the person to whom I am selling the goods on credit, but here time period is not mentioned कि मैंने कब debtor मेरा कब पेमेंट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं मंथली बेसिस पे सेल कर रही हूँ और जैसे जैसे उसे सैलरी मिलती जाए वो मुझे मंथली स्टार्टिंग में, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में पेमेंट कर देगा। हो सकता है वो फर्स्ट को पेमेंट कर दे, हो सकता है वो 7th को पेमेंट कर दे। बट इन दी BR द टाइम पीरियड इज़ फिक्स्ड, बट स्टिल हेयर आई एम सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। जब मैं क्रेडिट पे गुड्स को सेल करती हूँ तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल रिसीवेबल टाइम पीरियड मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको इतने टाइम में पेमेंट करनी है। So current assets are those assets which can be converted into cash or gives us a future benefit within a 12 months or operating cycle. Non-current assets are those assets which cannot be converted, just reverse of it, into cash within 12 months, means after 12 months or operating cycle it is converted into a cash. And these current non-current assets or fixed assets are not purchased for रीसेल पर्पस, मैं रीसेल के लिए नहीं खरीदती हूँ। यहाँ पे तो सारा रीसेल है क्योंकि मैं गुड्स हैं जिस चीज़ में मैं डील करती हूँ, इन्हीं से ही मेरा बिजनेस चलता है। बट दीज फिक्स असेट्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। लाइक मैंने क्या किया, लैंड खरीदा, मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने प्लांट खरीदा। ठीक है बेटा, दीज आर परचेज्ड बाय द फर्म टू प्रोड्यूस द गुड्स, प्रोडक्शन करने के लिए, और टू प्रोवाइड दी सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें आज खरीद रही हूँ, कल उठा के मैंने सेल कर दिया, या विद इन 12 मंथ्स इन्हें मैं सेल कर दूँगी, दोबारा नई लैंड खरीदूँगी और जगह फिर से नया बिजनेस सेटअप करूँगी। नहीं बेटा, जो बिज़नेस एक बार सेट हो जाए उसी पे ही हम क्या करते रखते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं। दैट्स वाई दे आर टू बी नोन एज फिक्स असेट। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स असेट। फर्स्टली द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिक्स असेट लाइक लैंड and building, furniture, plant and machinery, so many. ठीक है, tangible fixed asset and intangible fixed asset. Tangible fixed assets are those assets which can be seen and touched, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, योर मोटर कार, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बट इनटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, ओनली यू कैन फील। बट आप जब फील कर रहे हैं फिर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू और वर्थ है। लाइक क्या, गुडविल, आपको पता चलेगा अच्छा मेरी मार्केट में क्या गुडविल है। ठीक है, पेटेंट राइट मीन्स आपको किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का राइट है, राइट आपके पास है, किसी और के पास तो नहीं है, ओनली यू कैन फील। और यू हैव द राइट टू कॉपी समथिंग एल्स, लाइक आप देखते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे कॉपीराइट लिखा होता है, आप अपनी बुक्स वगैरह उठाइए वहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट। ठीक है, दीज आर द कॉपीराइट, ऑल्सो नोन एज इनटेंजिबल फिक्स एसेट, ओनली मीन्स यू कैन नॉट टच इट, ओनली यू कैन फील। नाउ लिक्विड assets are those current asset which can be converted into cash in a short time period, that is maximum 15 days, means 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी current assets जो कि किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में, that is to be known as liquid asset. So all current asset except stock and prepaid expenses is to be known as liquid asset. स्टॉक क्यों नहीं हो सकता कैश में कन्वर्ट 15 दिन में, और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों नहीं हो सकता? देखिए पहले प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड मीन्स जो मैंने एडवांस में, इसका मतलब वो मुझे सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट देगा, मुझे क्या कहते हैं यहाँ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
स्टॉक आप कितना भी डिस्काउंट दे दीजिए, अगर वो कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा. सो दैट्स वाई लिक्विड एसेट्स आर those current assets which can be converted into cash within short time period, or current asset except stock and prepaid expense.